Hello students, myself Deepak Zade. Today in this lecture we'll solve problem of general force system, right? Number of problems already were solved. So first step is what? In this question some distributed loads are given. ये जो है ना ऐसा ये semicircle, this is what called as uniformly distributed load. And ये जो in the form of triangle है is called as what? Uniformly varying load. So first what we have to do, you have to find out equivalent load. So we'll draw here equivalent load diagram. I will draw here equivalent load diagram. How will draw equivalent load diagram? You must know equivalent of UDL किधर आता है? At its center. ऐसा जो लोड है its direction is what? Rightward. तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड आएगा ये है W 15 न्यूटन पर मीटर. तो W इंटू इन व्हाट स्पैन इट इज एक्टिंग 3 मीटर, तो 15 इंटू 3 मीन्स अराउंड 45 हो जाएगा, राइट. वेयर लोड एक्ट्स एट इट सेंटर. इक्विवेलेंट ऑफ UVL विल गेट वेयर 1/3 फ्रॉम मैक्सिमम लोड. मैक्सिमम इज समवेयर हियर, राइट. फ्रॉम दिस वन 1/3 ऑफ दिस स्पैन, 1/3 ऑफ 3 मीन्स हाउ मच? 1. मैग्नीट्यूड ऑफ लोड क्या रहता है? WL divided by 2. Now see here, I'll draw here line diagram now. ये 3 meter long. This one is what? 3 plus 2. ये आपका 5 meter long. There is already couple here. This one I will represent as it is 120 Newton meter. ये एक point था, right? And this one is a point. हाँ, what load is acting? ये already given load है, right? How much? 30 Newton. Incline at what angle? 30 degrees, right? ये एक लोड है 60 न्यूटन एंड दिस एंगल इज व्हाट? 50 डिग्रीज. लोड इज हाउ मच? 60 न्यूटन, राइट. 1, 2 and 1 couple. Now equivalent of UDL. Equivalent of UDL will get where? At center of this span, direction rightward. ये 3 मीटर है. That means this distance becomes what? 1.5 meter and next distance becomes what? Again 1.5 meter. Magnitude of load W into L means what? 15 into 3. 15 into 3 means how much? 45 Newton. Clear? The equivalent of this load UDL is 45 Newton acting rightward at the center of 3 meter. So 1.5 and 1.5. This point is A, this point is what? B. Oh, point C है. Now equivalent of this UVL where 1/3 from maximum means ये load आएगा somewhere here 1/3 means how much? 1 meter. So other distance becomes what? Remaining one what? 2 meter. And this is already given as some 2 meter. Magnitude of load W 30 L 3 divided by 2 means this one comes out to be how much? ये 15 हो जाएगा ना. या 90 divided by 2 means what? 45 Newton. This one is what? 45. Means now how many forces are acting actually on body on this rod? एक 30 न्यूटन है, 45 न्यूटन, 60 न्यूटन, 45 न्यूटन एंड कपल. नाउ विल फाइंड आउट व्हाट? रिजल्टेंट. व्हाट आर द स्टेप्स इन फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम? तो फर्स्ट विल फाइंड आउट Rx, Ry, R theta. Rx how will find out? First equation Rx is what? Summation of Fx assuming rightward force is positive. चलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है? ये 45 न्यूटन है. राइटवर्ड मीन्स व्हाट? प्लस. ये नंबर 1. कॉम्पोनेंट ऑफ 30 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किधर आएगा? राइटवर्ड. एंगल इज विथ वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो जाएगा साइन प्लस 30 साइन 30, राइट. 30 साइन 30 राइटवर्ड पॉजिटिव. कॉम्पोनेंट ऑफ 60 राइटवर्ड. Angle is with horizontal, the horizontal component cos means what is the component? 60 cos 50 plus 60 cos of 50. Any other force in horizontal direction? एक 45 component of 60 component of 30. 45 तो vertical है, that will not come in picture. Find out this value. Rx comes out to be how much? 98.57 आना चाहिए. How much? 98.57
0.57 न्यूटन। आंसर कैसा आया? पॉजिटिव मीन्स व्हाट? राइटवर्ड। ये तुम्हारा आर एक्स आया, राइट। ये सिंपल रहता है। वंस यू नो एंगल्स एंड रेजोल्यूशन, फाइंडिंग आर एक्स, आर वाई, आर थीटा इज इजी। आर वाई इज व्हाट? समेशन ऑफ एफ वाई अज्यूमिंग अपवर्ड प्रोसेस पॉजिटिव। चलो चेक करो। कॉम्पोनेंट ऑफ 30 कैसा आएगा? अपवर्ड। एंगल विथ वर्टिकल, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट कॉस, मीन्स दिस कॉम्पोनेंट इज व्हाट? प्लस 30 कॉस 30। ये हो गया नंबर 1। कॉम्पोनेंट ऑफ 60 डाउनवर्ड आएगा। एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट साइन 60 साइन 50 माइनस 60 साइन 50 एंड एक 45 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट? 45। दैट मीन्स आर वाई कम्स आउट टू बी व्हाट? फाइंड आउट फास्ट। निगेटिव आता है 64.98। 64.98 निगेटिव आया, मीन्स व्हाट? 64.98 न्यूटन नेगेटिव। आंसर मीन्स डाउनवर्ड। मीन्स योर रिजल्टेंट जो है यू विल गेट इन विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट विल रिप्रेजेंट है राइटवर्ड है ये डाउनवर्ड है? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना। दिस इज व्हाट? आर एक्स राइटवर्ड, आर वाई डाउनवर्ड। तो इफ विल कंप्लीट हियर रेक्टेंगल, what will get here? R, and will assume angle as what? Theta. How will find out magnitude of resultant? Pythagoras theorem. क्या रहता है Pythagoras theorem? R is what? Root of Rx square plus Ry square, right? Rx value how much? 98.57. तो 98.57 का स्क्वायर प्लस 64.98 है इसका स्क्वायर। तो हाउ मच आर विल गेट? कैलकुलेट करो फास्ट। सबके पास में कैलकुलेटर है कि नहीं? 118.06 आता है, 118.06 न्यूटन। ये होगा आपका रिजल्टेंट। नेक्स्ट स्टेप विल फाइंड आउट व्हाट? थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं? tan ऑफ एंगल इज व्हाट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका अपोजिट क्या है? आर वाई। एडजेसेंट इज व्हाट? आर एक्स। मीन्स tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज आर वाई अपॉन आर एक्स। मीन्स थीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यूज। tan इनवर्स आर वाई इज व्हाट? 64.98 64.98 divided by Rx is what? 98.57. That means what? Theta will get here less than 45 आना चाहिए, because ये वैल्यू लेस देन 1 है, न्यूमरेटर छोटू है, राइट। एंगल आना चाहिए 33.4 डिग्रीज। कितना एंगल? 33.4। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? वेयर दिस रिजल्टेंट एक्ट्स, मीन्स व्हाट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट निकालना है तो व्हाट विल डू? विल अप्लाई वेरिग्नॉन्स थ्योरम। वेरिग्नॉन्स थ्योरम इफ विल अप्लाई, विल सिलेक्ट सम कन्वीनियंट मूवमेंट सेंटर। मुझे लगता है ये जो पॉइंट है ना, इधर मूवमेंट लेना इजी है, राइट। तो इफ यू टेक मूवमेंट हियर, आपको डिस्टेंस पॉइंट बी से मिलेगा, राइट। मीन्स हियर इफ यू टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, इफ यू टेक मूवमेंट, इसके लिए आई नीड सम स्पेस। तो ये 98.57 है, ये आपका 118 है, राइट। एंगल 33.4 है। आर वाई किधर गया? 64.98 न्यूटन। तो आई इरेज दिस वन। व्हाट? ये सब लिखा है ना आपने? देखो आर एक्स आर वाई, इधर मूवमेंट इक्वेशन लिखना है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, राइट। तो आर एक्स आर वाई आर थीटा फर्स्ट स्टेप आ गया। नाउ विल टेक व्हाट? मूवमेंट। वेयर विल टेक मूवमेंट? अबाउट से पॉइंट बी। If we take movement about point B, sum of movement about point B equal to our sign convention is what? Anti-clockwise movement positive. देखो about point B movement of 60 क्या आएगा? बोलो फटाफट। 0। 45 का movement about B anti-clockwise, distance 1.5 means 45 into 1.5. Clear?
फोर्स हॉरिजेंटल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल। ये मूवमेंट सेंटर है, होल्ड बार एट मूवमेंट सेंटर, बार ऐसा वर्टिकल है, 45 mm कैसा ऐसा है ना, 45 न्यूटन कैसा ऐसा लगा, किधर गया, राइट। अब ये 30 न्यूटन का अगर मूवमेंट निकालना है तो विल रिजॉल्व वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड, जिसका लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू बी, मूवमेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट 0। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऐसा है, मीन्स ये एंड बी, ये आपका ए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर राइटवर्ड तो ऐसा जाएगा ना, ये दिस विल रोटेट इन व्हाट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स व्हाट प्लस। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, 30 sin 30, 30 sin 30, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इधर है हॉरिजेंटल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल 3 मीटर, राइट, इनटू व्हाट 3। मोमेंट ऑफ 45 आया, मोमेंट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ 30, 60 का 0, 45 का मोमेंट अबाउट बी क्लॉकवाइज माइनस 45, व्हाट डिस्टेंस, फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजेंटल, हाउ मच, 2 मीटर। नाउ देयर इज नो फोर्स, एक कपल है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट, माइनस 120 न्यूटन मीटर, समझ में आया ना। माइनस ये जो है 45 का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस आया, इसका मूवमेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट का एंटी क्लॉकवाइज प्लस, 45 का मूवमेंट क्लॉकवाइज माइनस, एंड कपल माइनस। व्हाट इज द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, माइनस 97.5। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये जो आया सम ऑफ मूवमेंट, ये आया आपका नेगेटिव मीन्स व्हाट, क्लॉकवाइज। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो रिजल्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू बी वेयर विल रिप्रेजेंट, राइट साइड में जाएगा या बिलो दिस वन। कंडीशन क्या है, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट एंड मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ मूवमेंट कैसा आना चाहिए, सेम। देखो मैं एक सिंपल डायग्राम बनाता हूं, ये आपका BC सॉरी, ये आपका AB, राइट, अबाउट पॉइंट B यू आर टेकन मूवमेंट, रिजल्टेंट ऐसे, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, यू कैन आई विल रिप्रेजेंट कि बाबा ये 33.4 पे इधर भी आ सकता है ऐसा R, एंड ये साइड में भी आ सकता है R, करेक्ट। चेक करो ना किसका मूवमेंट क्लॉकवाइज है, सॉरी क्या होगा यार, हाँ इसका मूवमेंट अबाउट भी कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, ये R का, राइट, ये R का कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अरे तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये तो क्लॉकवाइज है, समझ में ना, ये कैसा है, क्लॉकवाइज, नेगेटिव आंसर आया था। ऐसा रिजल्टेंट इसके राइट साइड में रिप्रेजेंट करते तो मूवमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट कैसा आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मीन्स दिस इज नॉट वैलिड, राइट। आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आना चाहिए, मीन्स इफ आई रिप्रेजेंट सेम रिजल्टेंट हियर, ये R, राइट, दिस इज व्हाट R, तो इट कट्स बार BC at this point P. To find out this distance, which distance, horizontal, say X, how will take moment of any inclined force, will resolve। R अगर रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट RX, वर्टिकल कंपोनेंट इज व्हाट RY। चेक करो अभी, मूवमेंट ऑफ RY अबाउट B क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम डायरेक्शन आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, विल अप्लाई Varignon's theorem, applying what, applying Varignon's theorem of movements, क्या रहता है Varignon's theorem of movements, summation of moments of all forces about which point we are taken, B, right, about B, taking anti-clockwise movement positive, equal to what, moment of resultant about B taking anti-clockwise movement positive। इस sum of moment क्या आया है, माइनस 97.5 ना, क्लॉकवाइज है, मूवमेंट ऑफ R इज व्हाट, क्लॉकवाइज, माइनस RY इंटू X, माइनस RY इज व्हाट 64.98x, इधर 97 देखो दोनों साइड, एक तो माइनस माइनस आएगा नहीं तो प्लस प्लस आएगा, दोनों साइड माइनस में सम ऑफ मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट क्लॉकवाइज। अगर दोनों प्लस आता है तो सम ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, इधर कुछ डिस्टेंस मिल सकता है ना, चलो निकलो डिस्टेंस,
ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, राइट। 1.5 मीटर दिख रहा है इधर, 1.5 मीटर। लोकेशन ऑल्सो है रिप्रेजेंटेड, राइट। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम? क्या मेथड रहता है? RX, RY, R, थीटा। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वगैरह है तो उसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। एक UDL रहता है, एक UVL है, एंड एक आपका कंबाइंड लोड भी हो सकता है। कंबाइंड लोड रहेगा UDL एंड UL का कॉम्बिनेशन, तो 2 पॉइंट लोड आता है, राइट। अप्लाई वेरिग्नॉन्स थ्योरम एंड विल फाइंड आउट व्हाट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।